یقیناً بہت مشکل لمحہ ہے اور ہم آپ کے درد کو سمجھ سکتے ہیں. تو جب شہادت کی خبر آپ کو ملی تو یقیناً ایک ماں پہ کیا گزرتی ہے اس کا ہر کسی کو بخوبی احساس ہے. عید کا خصوصی شو ہم جسوال سے کر رہے ہیں. سپاہی حامد رسول کو خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے 31 سال کی عمر میں اپنی جان کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کیا. ہمارے لیے وہ فخر کا باعث ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو کہ ساؤتھ وزیرستان میں شن وارسک کے ضلع میں کیا جا رہا تھا، اس میں انہوں نے جام شہادت نوش کی. تقریباً 8 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا. ایک اور 7 سپاہی جو ہیں وہ شہید ہوئے جن کا تعلق کرک سے تھا. ہم بات کریں گے ان کی فیملی سے آج، اور ان کی جو مدر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں گے کہ عید کا خصوصاً جب تہوار آئے تو کتنا مشکل ہوتا ہے فیملی والوں کے لیے. اپنے پیاروں سے بچھڑ جانے کا ایک تو غم ہوتا ہے، دوسرا جب خوشی کا تہوار آتا ہے تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ یاد منائی جائے. اور ہم نے قبرستان میں ابھی فاتحہ بھی پڑھی ہے. ہم بات کریں گے سپاہی حامد رسول کا بچپن کیسے گزرا. یہ شہادت کا جذبہ کیا بچپن سے ان کے اندر موجود تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ہمیں حامد صاحب کے بارے میں بتائیں گی کہ سپاہی حامد کیسے شروع تھے؟ شروع سے شوق ہے، بہت شروع تو شوق ہے میرے بچے. شروع تو شوق ہے یار. چھوٹا جہا وہ سوٹیاں کہتے بنا کے ریفلاں تے کردے آدھے میں آرمی میں جائیں. آرمی چ ایسا تے میں انجی کرے سا نکے نکے بچے نال لائے تے اتنا سا جذبے آ میرے بچے. پڑھنے دے دوران بھی یہی ذکر کریں میں آرمی جانا ہے، میں آرمی جانا ہے. آرمی میں جانے کا شروع سے شوق تھا؟ شروع تو شوق تھا، شروع تو شوق تھا میں نے. تو پھر کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب آپ کا یہاں سے بیٹا آرمی میں سلیکٹ ہو گیا ہوگا؟ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی. آپ بھی بہت خوشی ہوئی. میں کام کر رہی ہوں تے باہر آیا تے جن کال آئی نا بھائی سلیکٹ ہو گیا حامد رسول تے آدھا امی میں نوکر ہو گیا ہوں، امی میں نوکر ہو گیا ہوں. بچہ اچھا ٹھیک ہے. اسی وقت چلا گیا، اسی وقت چلا گیا بھائی انا کے چلا گیا. کتنا فخر کا باعث تھا آپ بہت لوگوں کے فخر لیے؟ ہے، بہت فخر ہے. میرے بیٹے ماں نہیں بتایا کہ جڑا میں کمانڈو کورس کرنے جا رہا ہوں. اچھا، آپ کو یہ بتا کے نہیں گئے نہیں تھے؟ بتا کے 1.5 مہینہ ہویا جس طرح. پھر اس آخیا میں امی میرے واسطے دعا کرنا، امی میرے واسطے دعا کرنا. جب بھی اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا نا تو وہ کہتا تھا دعا کرنا امی میرے واسطے دعا کرنا، میرا صبح ٹیسٹ ہے. ہر میدان وچ میرا بچہ کامیاب ہوا. تو وہ ابھی بھی کامیاب ہیں. وہ انہوں نے جو شہادت کا رتبہ پایا یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے. بہت نیک بچے ہیں میرا، بہت نیک بچے ہیں، فرمانبردار بچے ہیں میرے. بالکل، وہ تو آپ کی تربیت بتا رہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کامیابی حاصل کی، جس طرح سے پاک فوج میں گئے، پھر وہاں پہ وزیرستان میں آپریشن کرے. وزیرستان جب پوسٹنگ ہوئی تھی تو کیا کوئی بات ہوئی آپ سے کہ ہر وہ روز بات ہوئی تھی، ہر روز بات ہوتی، ہر روز. پہلے میں نہ گل کرتے ہیں تو پھر اپنی بیوی نال. اچھا، پہلے سب تو پہلے آدھے مامی نال گل کرا. تو وہاں سے کیا کہتے تھے؟ کوئی فرمائش کرتے تھے آپ سے؟ کوئی نہیں، یہی کہا کہ میں امی جلدی آ جاؤں گا، جلدی آ جاؤں گا. میرا آخری آپریشن ہے بس. اس دن ہی گل کی تھی، آخری آپریشن ہے، کل پرسوں تک میں آ جاؤں گا. پہلے فون کیتا امی میں نے کپڑے بھائی کنے. ایک پنڈی دا لڑکا تو وہ اسی تے وہ دے کے پیسی تے وہ جس ٹیلراں دیندے بھی اس دے کے ہوئے تھوڑے جے تنگ سے ہوئے تے میں کہ ٹھیک ہے بچہ. پھر دوے تریے تڑ کیتی ستا نہیں امی میں کیا میں کپڑے دی کو نہیں. پھر دسی کپڑے نہیں بھیجے نوں، آدھا نہیں میں خود ہی آ جاؤں گا، خود ہی آ جاؤں گا، خود ہی لے آؤں گا. ہم ذرا تھوڑا سا پچھلی عید پہ چلے جائیں جب وہ یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ موجود تھے. کیسی عید گزری تھی؟ بہت اچھی عید گزری، بہت اچھی. میرا بچہ اس واری بھی آدھا سارے ਭਰਾਵਾਂ بھی بھابیاں بھی بھئی انہاں بھی پیکے گھر نہیں جانا، اتھے کٹھی عید کرساں.
अच्छा, कठी ईद है सॉरी, सारे मैं अपनी बीवियाँ भी बता दिया कि नहीं जाना, ईद के दूसरे दिन जाना है। तो सारे इकट्ठे थे। ईद का जैसे त्यौहार होता है, खाने बनाए जाते हैं, खाने खाए जाते हैं, फिर लोगों से मिलना। तो अब एक पूरे साल बाद ये नहीं पता था कि हालात किस तरफ चले किस तरह जाएंगे। के आ जाएंगे मेरे बेटे, ईद नहीं आएगी। थोड़े दिन पहले ही फोन किया उस्ताद दा भी जड़ा अम्मी जी मैं निकी ईद ते नहीं आना बहरहाल, हुण इस तो बाद आर्डर मिल रहा कि कोटा जाना है। अच्छा, ते बकरा उस खुद रखे आ भी मैं आप खुद कुर्बानी दे सा अपने पैसों का लिए। ईद कार कट्ठी कर गिना के पता फिर अगे उधर चला हुई तो फिर मैं छुट्टी ना मिले, कोटा चला हुई तो जब आखिरी बातचीत हुई थी वो क्या हुई थी आपकी उनसे, और कितना पहले हुई थी? बस जिस तरह 13वें रोज़े हाल तड़ा बात हुई 7 बजे शामी 7 बजे 7 बजे रोज़ कॉल करेंदे आ, फिर आदे नमाज अमीरी पढ़न लग पसन तो मेरी गल नहीं होंदी, आप ही नमाजों तो लगा लेंदे आ। गल हुई तो फिर यही पूछा खैर खरीद अम्मी जी तबीयत कैसी है, मैं क्या बेटा ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या मैं ठीक हूँ अम्मी, कोई मसला नहीं है, बस यही गल हुई थोड़ी। तो वो भाई ने मुझे बताया कि वो जब भी फ़ोन करते थे आपसे पहले बात करते पहले थे, बात भाभी से बाद में वो करते बाद थे। बाद में पहले तो में माँ के रुतबे का एहसास था, माँ से मोहब्बत और प्यार था। मेरे से तो नहीं गल की उसने, तो उसकी जो बीवी है वो कह रही है कि कहते थे कि अल्लाह करे मैं अम्मी से पहले मेरी मौत आ जाए। तो बेटा यकीनन बहुत मुश्किल लम्हा है और हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। तो जब शहादत की ख़बर आपको मिली तो यकीनन एक माँ पे क्या गुज़रती है इसका हर किसी को बखूबी एहसास है, लेकिन ये वो जज्बा है जिसने हमारे अंदर हिम्मत एक बहुत पैदा फख्र कर है, दी है। ये बहुत फख्र शहादत है का मेरे जज्बा है। बेटे का, उसकी जवानी का बहुत दुख है, उसकी जवानी बहुत थी, शहादत का बहुत फख्र है मुझे, उसकी शहादत का बहुत फख्र है। मेरा बेटा एक कहता था कि मैं शहादत पाऊँ, मेरा पहला झंडा कब्रिस्तान में मेरा लगेगा। और वाकई जसवाल के कब्रिस्तान में अगर झंडा मौजूद है तो उन्हीं की कब्र पे मौजूद है। मैच का बहुत शौकीन है यार, क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते थे। गाँव के लड़कियां पहले आखे ऐसा भी मैं क्रिकेट किसी नाल पास हटो मैं आ रोसा छुट्टी ये तो दुए तड़ा क्रिकेट खेलनी। मेरे बच्चे दे बड़े जज्बे साथ ही ले गया, मेरा बच्चा जज्बे नाल गया। जब शहादत के बाद एक यकीनन अल्लाह मियाँ सब्र भी दे देता है, अल्लाह ताला जो लवाइकीन हैं उनमें वो हिम्मत और हौसला भी दे देता है कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त करें, लेकिन याद तो सताती होगी, ये इंसानी फितरत का तकाजा है। कितना याद करती हैं? बहुत याद शाम होती है तो मेरा ये दिल करता है कि मैं इस गाँव से भाग जाऊँ, मेरा इतना दिल नहीं लग रहा। खाने में क्या पसंद था उनको? खाने का उसको पसंद गोश्त पसंद था, बिरयानी वगैरह खुद भी पका लेता था, अच्छा, खुद भी पका लेता था। गांव के लड़कियां आते अभी आज प्रोग्राम करना सारे पैसे पाओ है आज पकाना है, तो फिर बैठो मैं खुद ही पकाता, खुद पकाता था, फिर लेके आता था कि अम्मी वे चेक करो कैसा पकाया है मैंने, बहुत अच्छा पकाता था, बहुत शौक है ऐसा। तो जिस तरह से फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया यकीनन आप लोगों के लिए बाइस फ़ख्र है, तो क्या मैसेज देंगी उन लोगों को जो माएँ अपने जवान बेटे जो हैं फ़ौज में भेजती हैं, क्या उनके लिए पैगाम है आपका?
अगर और बेटे भी मेरे फौज में होते तो मैं उनका भी यही कहती कि मुल्क वास्ते कुर्बानी दें, अपने मुल्क वास्ते कुर्बान हो गया मेरा बेटा। ये तो आपके जज्बे को हम दाद देते हैं कि जवान बेटा खोने के बाद भी आप कह रही हैं कि अगर और भी आपके बेटे होते तो वो इस मुल्क पर निछावर कर देती। ये कलेजा, ये दिल, ये सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद माओं में है कि वो किस तरह से जो है अपने बेटे कुर्बान करती हैं इस धरती पे। ये जे दलेर बेटे कुर्बान होंदे रहो सन तो मुल्क कायम रोसी, मुल्क कायम रोसी साडा। और आपके बेटे ने तो दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया है। वो लोग जो दूसरों को ज़िबा करके खुशियाँ मनाते हैं, जो दूसरों की खुशियाँ छीनते हैं, जो दूसरों को बेदर्दी से कत्ल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ माशरे का हर शहरी जो है वो खड़ा हुआ है और जंग लड़ रहा है। और आप जैसी ख़वातीन जो जंग लड़ रही हैं वो यकीनन दूसरों के लिए जो है उन आपकी पैरवी करने का लोगों का दिल चाहता है कि जिस तरह से आपके बेटे ने शहादत पाई है और जिस तरह से सब्र और इस्तकामत का मुज़ाहरा आप कर रही हैं, यकीनन वो काबिल दीद है। नाज़रीन, ये वो जज्बा है जिस जज्बे की हम बात कर रहे थे। यहाँ जसवाल में आके इनकी फैमिली के हमरा ईद का प्रोग्राम करने का मकसद है, और वो मकसद बड़ा वाज़ेह है। वो मकसद ये है कि हमारे दरमियान जब तक ऐसी माएँ मौजूद हैं हम लड़ते रहेंगे। आप ये ना समझें कि हम पीछे ये डर के बैठ जाएंगे। और एक एक दहशतगर्द का जब तक खात्मा नहीं हो जाता तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं यहाँ के लोग। ये अपना खून पसीना देने को तैयार हैं, ये अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। हाँ, ये लोग तैयार हैं कि किसी भी तरह से किसी भी मुश्किल मसले से किसी भी मुश्किल हालात से दो चार होना पड़े होंगे, लेकिन इस वतन की हिफाजत करेंगे क्योंकि इसका ज़िम्मा लिया हुआ है और इससे वादा किया हुआ है। और ये उसी तरह है हमारी, जैसे हमारी अपनी माँ होती है, ये धरती हमारी माँ है। तो कोई भी ये किसी गलत फहमी में ना रहे कि हम उसको छोड़ देंगे। ना सिर्फ ऐसी माएँ छोड़ेंगी बल्कि इस कौम के जो बहादुर सपूत सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं वो शाना बशाना खड़े होके अपने सोल्जर्स जवानों के वो कुर्बानी भी देंगे, वो लड़ेंगे भी और इन दहशत गर्दों का ख़ात्मे को यकीनी बनाएंगे। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम दिया। आखिर में मैं ये चाहता हूँ कि तमाम देखने वाले उनको यकीनन एक त्यौहार का मौका है, उनको मुबारकबाद भी बनती है, आप उनको मुबारकबाद भी दे दें। और क्या पैगाम तमाम देखने वालों को देना चाहेंगी, पाकिस्तानियों को, जिस पाकिस्तान की खातिर आपके बेटे ने अपनी जान कुर्बान की? मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है यार, और भी बेटे होते तो मैं वो भी कुर्बान कर देती, आर्मी में होते तो वो भी कुर्बान कर देती। फ़ख्र की बात है मेरे वास्ते, बहुत फ़ख्र है मेरे बेटे में। ये गांव के लोग भी जब तो इन्होंने दो त्रे ग्रावां दे सुनाल आते तो फोन करके मैं दसते आते कई लंगर तो ड्यूटी लवाई, कई मैं क्या बच्चा तू भी पिछे ही रहा करना थोड़ा जा। आखा मैं कंड नहीं फेरनी, कंड तो फेरनी नहीं। बिल्कुल ऐसे के नाज़रीन, सिपाही हामिद रसूल के घर वालों का आपने जज्बा देखा। और सिपाही हामिद रसूल जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हैवी फायर एक्सचेंज के नतीजे में उनकी शहादत हुई। 31 साल ये नौजवान यहाँ जसवाल में उनका जस्द खाकी लाया गया, मिलिट्री एजाज़ के साथ उनको सुपुर्द खाक किया गया और उनकी कब्र पे अभी भी पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। हम यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। और जब आप ये ईद की खुशियाँ मना रहे हो तो अपने पाकिस्तान का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, इसको कायम करने के लिए हमने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।